Hello everyone, welcome once again to our channel. Now in this video we are going to do question number 3, 4 and 5. Now these are the important questions from this exercise. So we will do it one by one. Okay, so let's start with the third one. So let's see the third question. It is a proof that the greatest integer function f from r to r given by fx is equal to this. Now this is the symbol for greatest integer function is neither 1 1 nor onto. And then they have defined this. What does this mean? This denotes the greatest integer less than or equal to x. तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता कैसा है, ठीक है, और फिर हम उसका ग्राफ देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू क्यों नहीं है. सो लेट्स डू इट वन बाय वन. तो सपोज आई राइट in the bracket 2.5. Okay, now the value of this is the greatest integer function, so you have to write the value of this is 2. Now as you can see in this 2.5 we have two parts. One is the integer part. What is the integer part in this? It is 2. And one is the decimal part. Okay, so what is the decimal part in this? It is 0.5. So in greatest integer function you have to just remember that you have to take the integer value whatever it is. Okay, like if you have 2.9. Now in case of 2.9, what is the integer value? It is 2. So you have to take this as 2 only. Take a negative number. Suppose you have minus 5.1. Okay. Now what is the integer value? It is the greatest integer less than or equal to x. Okay. Now here your x is this 5 minus 5.1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? The integer value is minus 5. So you have to just remember that you have to take the integer part of it. That is the greatest integer value. And we write this in the symbol form as x. Okay. Now this value, if it is 1, suppose it is 1, that means your lowest integer in this is 1. That means 1 is less than equal to x is less than 2. यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा और ये जो लोअर बाउंड्री होगी उसकी वो छोटा नंबर होगा. ठीक है, जैसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू सपोज 3. तो 3 का मतलब 3 इज़ द लोएस्ट बाउंड्री. सो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 4. This is how you have to write. Okay, now let's understand the problem, how we are going to do it one and on to. Okay, so now as I told you, you have to just look at your integer part. So if I take the map of this minus 1.5 under this function, under the greatest integer function, where it will go? It will go to the integer part of this. So integer part of minus 1.5 is minus 1. So this will go to where? It will go to minus 1, right? Now what about 0? Where will 0 go? 0 will go to 0 only because integer part of that is 0. Where will 1 go? 1 will go to 1 only. These are integers, so this will go to integer only. You have to take care of the decimal numbers. So 1.5. Now pick the integer part from this. So in 1.5, what is the integer part? It is 1 only. So greatest integer function में ये 1.5 कहाँ जाके मैप करेगा? ये करेगा 1 को. तो यहाँ पे 1 भी 1 को मैप करेगा, 1.5 भी 1 को मैप करेगा. ठीक है, इवन इफ़ यू हैव 1.9, तो 1.99 हो या 1.9 हो वो भी कहाँ पे मैप करेगा? दैट विल गो टू 1 ओनली. ओके, सो दिस इज़ हाउ द मैप लुक्स लाइक. सो कैन यू टेल मी वेदर दिस इज़ 1 1 और नॉट? सो एज आई टोल्ड यू वी शुड हैव ओनली 1 to 1 मैप फॉर 1 1. ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर 1, इस वाले 1 को 3, मतलब सारे नंबर्स जो 1 से लेके 2 से लेस हैं वो सारे नंबर्स 1 को मैप कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये on 1 1 तो नहीं होगा. So this is not going to be 1 1. It is not 1 1. Okay, now let's do it for onto. Now as you can see in this codomain we have this range. Our range in the greatest integer function is going to be -1 0 1 2. मतलब ये जो integer values हैं वही cover हो रही हैं. ठीक है, ध्यान से देखो, अगर इसकी जो ये तुम range निकालोगे यहाँ पे, so this will cover all the integer values. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी range आने वाली है, रेंज का मतलब होता है जहाँ पे हमारी सारी मैपिंग्स आती हैं. ठीक है, मतलब ये सारे नंबर्स के जो इमेज हमें मिलते हैं उस सेट को हम बोलते हैं रेंज. तो अब ये हमारा जो सेट बन रहा है रेंज का वो कैसा बन रहा है? इंटीजर नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स होंगे, -1 -2 0 1 2 3 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सब इस रेंज में आ रहे हैं. तो इसका रेंज जो है वो एक्चुअली में Z बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारे डेसिमल नंबर्स हैं, क्योंकि ये हमारा कोडोमेन तो R है, तो R में तो हमारे सारे नंबर्स हैं, रैशनल और इरेशनल, पर रेंज में सिर्फ Z कवर हो रहा है. तो मतलब जो बाकी नंबर्स हैं वो तो यहाँ पे बच जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे और भी नंबर्स होंगे जिनकी कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है. तो इसका मतलब है ये ऑन टू नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो अब हम देखेंगे इसको हमें लिखना क्या. So for 1 1 we can write the elements like we have f of 1. If we do the mapping of 1 it is 1. If we do the mapping of 1.5 it is 1. ठीक है, दो नंबर्स के जो हमारे मैप हैं वो सेम हो जाते हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 1 1. ठीक है, सो वी हैव f of 1 इज इक्वल टू f of 1.5 एंड देयरफॉर f इज़ नॉट
1 1, क्योंकि यूनिक मैपिंग नहीं रह जाती है तो ये 1 1 नहीं होता है, सो इट इज़ नॉट 1 1। नाउ ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए भी हमें कोई एलिमेंट लेके दिखाना है, क्योंकि ये ऑन टू तो है नहीं, तो हमें कोई एलिमेंट पिक करना है और दिखाना है कि ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम दिस, यू कैन टेक 0.5, ठीक है, दिस 0.5 दैट बिलोंग्स टू योर आर, यहाँ पे आर है ना हमारा, आर दैट इज़ इन द कोडोमेन, ठीक है। दिस 0.5 इन द कोडोमेन डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, इन आर, ये आर कहाँ पर है, डोमेन, ठीक है। तो 0.5 जो हमारा आर में था, जो कोडोमेन है, उसके लिए हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, कहाँ पर, आर में, जो कि हमारा डोमेन है, पहला वाला सेट। देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक ग्राफ भी देख लो, ये ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे होता क्या है, जो भी इंटीजर वैल्यू होती है तो हम कैसे लिखते हैं, जैसा कि मैंने भी बताया, लेस देन और इक्वल टू 0 टू स्ट्रिक्टली लेस देन 1, मतलब जो अपर बाउंड्री होती है उसको वो टच नहीं करती है। तो यहाँ पे हमें गैप मिलता है, हर अपर बाउंड्री में वी विल गेट अ गैप। सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमारा जो रेंज होता है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है, जैसे इस केस में जो हमारा रेंज था, यहाँ पे रेंज हमें z मिल रहा है पर हमारा कोडोमेन क्या है, r है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम ऑन टू को लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट, ये भी करेक्ट है, अगर हमने ये लिखा तो ये भी हमारा ऑन टू के लिए करेक्ट है। और यू कैन राइट बिकॉज द रेंज, ठीक है, रेंज हेयर इट इज़ z विच इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, कोडोमेन क्या है, पूरा सेट आर है, ठीक है। देयरफॉर एफ इज़ नॉट ऑन टू। तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है जो हमारा बताता है कि हमारा एफ जो है वो इन्वर्टिबल होगा या नहीं। तो अगर हमारा रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाता है तो एफ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन टू, लेकिन अगर इक्वल नहीं होता है तो ये हमें बताता है कि एफ हमारा ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। Okay, now let's come to the next question, which is question number 4 from exercise 1.2. It is show that the modulus function f from r to r, which is given by fx is equal to mod x, is neither 1 1 nor on 2. मतलब यहाँ पे जो mod x हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये भी 1 1 और ऑन टू नहीं होगा, ये हमें शो करना है। मॉडुलस फंक्शन दिखता कैसे है, अगर हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी x हो जाती है, ठीक है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और सेम वैल्यू हमारी -x हो जाती है जब x लेस देन 0 होता है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पे देखो, तुम्हें पता है मॉडुलस वैल्यू क्या देती है, हमेशा हमें जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो अगर हम इस मॉड में -2 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 2, और अगर हम 2 पुट करेंगे तो भी हमें वैल्यू मिलती है 2, ठीक है। हम 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलती है 1, -1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 1, ठीक है। जो भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें आंसर में, आउटपुट में हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ ही मिलती हैं। तो जब इसका ग्राफ बनता है तो यहाँ पर जो हमारा 1 है, 1 के लिए भी 1, -1 के लिए भी 1, 2 के लिए भी 2, -2 के लिए भी 2, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। तो इस लीनियर फंक्शन के लिए जो भी ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। तो एक बात देखो, इसके जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जो y की जो वैल्यूज़ कवर हो रही हैं, ये सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ कवर हो रही हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कवर हो रही हैं। जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो y डैश वाली एक्सेस है, इसमें तो कोई पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब ये हो रहा है कि ये जो हमारा जो y एक्सेस होता है वो हमारा एक्चुअली में ये वाला सेट होता है, कोडोमेन का सेट होता है, और जो हमारी x एक्सेस होती है ये कौन सा सेट होता है, ये हमारा डोमेन वाला सेट होता है। तो डोमेन में से तो हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मतलब डोमेन का तो सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। लेकिन जो कोडोमेन वाला है, मतलब ये जो y एक्सिस है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कवर हो रही हैं। तो मतलब इस सेट में अगर हम देखें तो जो भी हमारा आंसर आने वाला है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आने वाले हैं, वो भी इंटीजर्स, नहीं हम सब कुछ ले सकते हैं इसमें, तो ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ कवर हो रही हैं, मतलब जो हमारा रेंज मिल रहा है यहाँ पर, जो हमारे मैपिंग का आंसर आ रहा है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आर कवर्ड इन दिस, तो नेगेटिव नंबर्स बच जा रहे हैं, उनके लिए कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम केस हो रहा है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1 1। तो 1 1 में क्या हो रहा है, क्योंकि 1 और -1 सेम वैल्यू दे रहा है 1, हम 1 रख रहे हैं तो भी 1 आंसर आ रहा है, -1 रख रहे हैं तो भी 1 आंसर आ रहा है, तो दोनों पॉइंट पे आंसर हमें सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये 1 1 भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ईजी है। तो इसी चीज़ को हम लिख देंगे।
सो लेट्स डू दैट. सो यू नो दैट -1 हमने पुट किया क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, तो -1 हमें कहाँ लेकर के जाएगा, -1 विल गो टू 1. इसकी मैपिंग कहाँ पर आएगी, 1 पे आएगी. ठीक है. और ये जो 1 है, ये वाला 1 कहाँ पर जाएगा, 1 विल गो टू दिस. ठीक है. 0 कहाँ पे जाएगा, 0 विल गो टू 0 ओनली. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे दोनों नंबर्स की मैपिंग सेम हो रही है. ऐसा 1 1 में नहीं होना चाहिए, तो ये तो 1 1 नहीं है. सो दिस इज़ नॉट 1 1. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस इज़ 1 1. ठीक है. ऑन टू भी नहीं होगा, बिकॉज ऑन टू में व्हाट वी आर हैविंग, वी आर गेटिंग द रेंज. जो हमारा यहाँ पे रेंज सेट मिल रहा है, दैट रेंज कवर्स ओनली द पॉजिटिव. ये भी नहीं आएगा रेंज में, तो रेंज में ओनली यू हैव ओनली द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस. ठीक है. तो यू हैव ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स हमारे आ रहे हैं. कहाँ पर आ रहे हैं, हमारे रेंज में. ठीक है. तो हम देख रहे हैं हमारा रेंज और कोडोमेन दोनों अलग अलग हो गया. ठीक है, सेम नहीं है, तो ये भी ऑन टू नहीं होगा. तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन टू. Okay, so let's write this for 1 1. You have f of -1 is 1, which is same as f of 1. So therefore you have f is not 1 1. For onto you can write, onto हम दो तरह से लिख सकते हैं. एक तो हम बता सकते हैं कि हमारा रेंज जो है that is set of all positive real numbers आ रहा है. वहीं पे जो हमारा कोडोमेन है, that is actually complete R. So because you have that range is not equal to codomain, therefore this f is not onto. ये onto तो नहीं होगा. ठीक है. एक तो ये तरीका है लिखने का, या तो फिर तुम कोई एलिमेंट लो और बताओ कि उसका प्री इमेज हमें हमारे डोमेन में नहीं मिल रहा है. जैसे कि -1 है. ठीक है. -1 बिलोंग्स टू दिस R. कोडोमेन डज नॉट हैव एनी प्री इमेज. और प्री इमेज हमें कहाँ मिलता है, डोमेन में. सो दिस सेट इज डोमेन. सो -1 का कोई भी प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं मिल रहा, देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू. दोनों ही तरीका सही है, दोनों वे ऑफ राइटिंग करेक्ट है. हम कुछ भी लिखेंगे, दोनों आंसर्स करेक्ट है. ठीक है. Now let's take the last question of this video, that is question number 5. Show that the signum function f from R to R, which is given by this. Now the function is 1 when you have x is strictly greater than 0. It is 0 when you have x is equal to 0, and the value is -1 if you have x strictly less than 0. ये भी फंक्शन जो है हमारा 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा. ठीक है. एक बार हम ये फंक्शन समझेंगे, सिग्नम फंक्शन होता कैसा है. सो लेट्स सी दिस. बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी x की वैल्यूज़ जो हैं, ये तुम्हारा x एक्सेस है, अगर तुम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हो, मतलब तुमने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 1.5 पुट किया, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, √2 पुट किया. ठीक है. कुछ भी हम पुट कर रहे हैं, तो उस पर जो हमारा आउटपुट निकल रहा है दैट इज़ 1, मतलब जो उस पर आंसर निकल रहा है 1. ठीक है. तो वो हमारा आंसर आना चाहिए 1. तो ये हमारा एक ये कांस्टेंट लाइन की तरह से यहाँ पे सिर्फ 1 आंसर आएगा. हर एक वैल्यू के लिए आंसर आएगा 1. जब पॉइंट 0 है तो उस पर आंसर हमें 0 ही मिलेगा. ठीक है. इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ हमने गैप बनाया है. ठीक है. तो यहाँ पे नहीं आएगा. जब हम नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं, अब हमने लिया -1, -2, -√2, कुछ भी हम नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो उस पर हमारी वैल्यू आ रही है -1. ठीक है. तो उस पर हमें क्या आंसर मिल रहा है, ये हमें एक कॉन्स्टेंट लाइन मिल रही है यहाँ पे -1 पे. मतलब सारे नेगेटिव x के लिए वी आर गेटिंग द सेम आंसर एज -1. मतलब इस सेट में, मतलब जो तुम्हारा कोडोमेन होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो y, ये जो y एक्सिस है, इसमें हमारी कितनी वैल्यूज़ कवर हो रही हैं, इसमें तो हमारी 3 ही वैल्यूज़ कवर हो रही हैं. एक 1 है, एक 0 है और एक -1 है. इन तीनों के अलावा कोई भी आंसर नहीं आएगा, मतलब कोई भी आउटपुट नहीं आएगा. चाहे हम इनपुट कुछ भी डालें, इन तीनों में से ही कोई आंसर आएगा. तो मतलब जो रेंज सेट हो गया यहाँ पर, हमारा रेंज क्या बन गया यहाँ पर, 1 0 -1. यही 3 नंबर हमारे रेंज में आ रहे हैं. पर जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन हमारा क्या है यहाँ पर, सी अवर कोडोमेन इज़ कंप्लीट आर. हमारा कोडोमेन क्या है, कंप्लीट आर. तो यहाँ पे भी वही केस हो रहा है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये ऑन टू नहीं है. ओके. नाउ व्हाट अबाउट दिस 1 1. 1 1 कैसे दिखाएंगे. तो 1 1 के लिए क्या हो रहा है, 1 1 के लिए हमें पता है वैल्यूज़ अलग अलग आनी चाहिए, मतलब हर एक का आउटपुट अलग आना चाहिए. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम 1 रख रहे हैं तो भी आंसर 1 आ रहा है, हम 5 रख रहे हैं तो भी आंसर 1 आ रहा है, हम 100 रख रहे हैं तो भी आंसर 1 आ रहा है. सेम वे इन द नेगेटिव केस, व्हेन यू पुट द नेगेटिव नंबर्स -1 तो भी आंसर -1 आ रहा है, व्हेन यू पुट -100 तो भी आंसर -1 आ रहा है. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये मैपिंग 1 1 तो नहीं हो रही है. ठीक है. सो लेट्स सी दिस. अगर हमने -2 रखा, तो -2 के लिए मेरा आंसर क्या होगा, क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए मेरा आंसर क्या आने वाला है, -1. तो सारे नेगेटिव नंबर्स जो रहेंगे वो सिर्फ एक ही नंबर को मैप करने वाले हैं, और वो है -1. 0 किसको मैप करेगा, 0 मैप कर रहा है सिर्फ 0 को.
ठीक है। अब आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स पे। पॉजिटिव नंबर्स कहाँ पे जाने वाले हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो सिर्फ 1 को ही मैप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे रेंज बन के आ रहा है, ये तो बहुत छोटा सा सेट आ रहा है जिसमें 3 ही नंबर्स हैं। तो रेंज हमारा हो गया 1 0 -1, सिर्फ ये 3 नंबर का रेंज है। तो रेंज तो इक्वल है ही नहीं, तो ये तो ऑन टू नहीं बन रहा है। 1 1 भी नहीं बन रहा है क्योंकि सारे नेगेटिव्स माइनस को कर रहे हैं और -1 को कर रहे हैं, और सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 को कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट 1 1। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. Okay, one thing is there, you can also write this question, this signum function can also be written in this form, mod of x upon x, where when x is not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0. तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें इसका ये फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे ना mod x को, तो हमें 2 वैल्यूज़ मिलती है, एक x ग्रेटर दैन 0 और एक x लेस दैन 0। तो ग्रेटर दैन 0 पे क्या होगा कि ये वैल्यू जो है हमारी कैंसिल होकर के 1 बन जाती है, और लेस देन पे कैंसिल होकर -1 बन जाती है। तो अगेन वो सिग्नम फंक्शन का ही फॉर्म ले लेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है। सो जस्ट यू कैन टेक दिस इनटू केयर। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू 1 1। 1 1 के लिए तो हमें बस ऐसे ही लिखना है कि f ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 आएगी और f ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। सो नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हो, f ऑफ -1 की वैल्यू -1 आएगी, f ऑफ -2 की वैल्यू भी -1 आएगी। सो f इज़ नॉट 1 1, तो f तो 1 1 होगा नहीं। What about onto? Onto में हम क्या लिखने वाले हैं? Onto में we are going to write about range and codomain, ठीक है। So our range is -1 0 1 and our codomain is complete R. So as range is not equal to, range हमारा codomain के इक्वल नहीं है, therefore f is not onto. तो ये onto भी नहीं होगा, तो it is not onto and not 1 1. So these questions are important, these 3 questions. So in my next video I am going to do the next 3 questions. So stay tuned with us. Thank you for watching.